السلام علیکم، میرا نام ہے فرحان علی اینڈ ویلکم مائی یوٹیوب چینل ایکسل والا آفیشیلز۔ گائز آج میں آپ کو ایکسلز کے بیسکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم ون بائی ون ایک پوری سیریز ہم ڈسکس کریں گے جس کو ہم بیسکس آف ایکسل یا ایکسل بیسکس فار بگنرس کے لیے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ وتھ می۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے نمبر 1 بیسکس آف ایکسلز یا انفارمیشنز۔ ٹھیک ہے گائز، جب ہم ایکسلز کی شیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو انٹرفیس شو ہوتا ہے وہ اس طرح کی ایک ایکسل کی فائلز اوپن ہوتی ہے جس کا یہی انٹرفیس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا ٹائٹل ہے بک 1 کے نام سے۔ اس کو جس طرح مرضی آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں۔ اس ٹائٹل کا نام چینج کرنے کے لیے ملٹیپل طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو آفیشیل طریقہ جو شارٹ کٹ کے طور پہ وہ بتاؤں گا کہ آپ سمپل فائل کو اوپن کریں، F12 کلک کریں۔ یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی فائل آپ کس جگہ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں اور فائل کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کر دیتے ہیں اس کو ٹیسٹ فائل کے نام سے ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ۔ یہ دیکھیں، اس کا نام ٹیوٹوریل سے چینج ہو گیا ہے ٹیکسٹ فائل کے نام سے۔ اچھا گائز، سب سے پہلے تو میں نے فائل سیو کر دی اور کس طرح سیو کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے یہ دیکھیں، لیفٹ کارنر پہ جائیں گے تو ریسٹور ڈاؤن کا آپشن ہے۔ اس کو منی ریسٹور اور چھوٹا بڑا ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، ریسٹور ڈاؤن یا ریسٹور اپ، اور اس کے ساتھ ہے منیمائز۔ ٹھیک ہے، اب منیمائز کریں گے تو یہ اسکرول ہو کے شیٹ چلے جائے گی فولڈر میں اور بعد میں پھر واپس آ جائے گی ٹاسک بار سے۔ اس کے بعد گائز ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یہ دیکھیں آپ، ریبن ڈسپلے آپشنس ہیں۔ اس کو ہم ملٹیپلس دیکھیں، آٹو ریبنز ہے، وہ ریبنز ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کلک کریں گے شو ٹیکسٹ بار تو ایسے شو ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کلک کریں گے تو شو ٹیکسٹ بار کمانڈ، وہ کمانڈ کے ساتھ وہ آپشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ ہے سسٹم کا نیم ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، اللہ آپ کو بھلا کرے جی۔ سب سے پہلے آپ آ جائیں، یہ دیکھیں اس کارنر پہ، اس کو کہتے ہیں کوئک بار ٹیکسٹ کالم ہے، اور اس کے بعد یہ ہوم ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ پھر ہوم ہے، ہومس میں جا کے یہ دیکھیں آپ، بولڈ ہے، اٹلیکٹرک ہے، یہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کرنے کے لیے انڈر لائن، پھر یہاں سے بارڈرز لگانے کے لیے آپ اپنی ڈاٹے کو بارڈر لگا سکتے ہیں، فل کرنے کے لیے آپ سیلز کو، اور فلز کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد فونٹ چینج کرنے کے لیے تو یہ آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اپنے سیلز کی الائنمنٹ کرنے کے لیے آپ جو چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرج ہے اور ریپ ہے سیل، اسی طرح یہ چلتا ہے گائز۔ اس کے بعد میں فوراً سے یہ میں جسٹ آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں ایکسل کے، جو کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جس سیریز میں سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہے انفارمیشنز کا۔ گائز یہ سارے ہمارے پاس ٹولز بار ہیں، ہر ٹول بار میں دیکھیں انسرٹ ہے، جتنے بھی انسرٹس کے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ یہاں آ جائے گی۔ ڈرائنگ ہے، یہ اسپیسیفک 2013 سے لے کے 2020 اور 23 تک کے جو سافٹ ویئر ہے انہی میں ہی یہ اپڈیٹ ہے مائکروسافٹ ایکسل میں، اور اس سے جو پہلے والے ہیں وہ آپ کو ایک سیپریٹلی خود ورکنگ آپشن سے نکال کر ڈالنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ پیج لے آؤٹ ہے، فارمولا کے ریلیٹڈ یہ ساری جو دیکھیں پینلز ہیں یہ اسی پینل فارم میں آ جائیں گے۔ ڈیٹا ہے، اب ڈیٹا کا ریلیٹڈ جو بھی کیوری ہیں، ویب ہے، CVS فائل ہے، ریسنٹ ریسورسز ہے، ایڈوانس ہے، کالمز ہے، فورکاسٹ شیٹ ہے، سب ٹوٹل گروپ کی فارمولا، یہ سارا ہی ڈیٹا کے ریویو کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، چیک ایکسیسیبلٹی طریقے اور اسپیلنگ تک وہ ساری ہی ریویو میں آ جائیں گی۔ اس طرح ویو ہے، اب شیٹ میں کوئی کالم بریک، پیج بریک ہے، پیج لے آؤٹ ہے، کسٹمز ہے۔ اس کے بعد گائز نارمل ہے، رولز ہے، گریڈ لائن رکھنی ہے، گریڈ لائن ریموو کرنی ہے، ہیڈنگز ہے، اس کے بعد فارمولا بار ہے، آپ جو چیزیں ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ ویو سلائڈ ہے، یہ دیکھیں 2 شیٹوں کو مرج کر کے لے آتا ہے وہ۔ پھر سنکرونائز بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپشن ہے۔ فریز کا آپشن ہے، ارینج کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، سلائڈ ہے، اسپلٹ ہے، ہائڈ ہے، فارمولا ہے۔ ڈیولپر میں دیکھیے ساری مائکرو ویژول
और माइक्रोज हैं, माइक्रो सिक्योरिटी, यूजेज, रिबन, माइक्रो ऐड इन एक्सटेंशंस, ऐड एक्सेल में एक्सटेंशन, कॉम्स है, इंसर्ट है, जो भी सारी डेवलपमेंट की चीज़ें मतलब इसमें है। और हेल्प अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कोई एक्सेल के ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं या कोई उनके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इस हेल्प के थ्रू अपनी शीट में जो भी मदद चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ उस नेचर की आप क्वेरी लिख के वो फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये हमने इंफॉर्मेशन तो डिस्कस कर दी, तो अब जो है हम करेंगे नेविगेटिंग इन एक्सेल। वो क्या है? वो ये है सेकंड पॉइंट कि ये देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, इसको हम मूव के अगर हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम है, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये रोज है। मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। तो इसका साइज शीट का कम करने के लिए देखेंगे ऐसे है, नेविगेट कर लें इसको, स्मॉल एक्सेस करेंगे, या अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जहाँ तक अपनी शीट को व्यू कर लेना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। गाइस इसके बाद पेज ब्रेक है, वो इस तरह हो जाएगा। फिर आप ये देखें पेज सेटअप है, आप वो कर सकते हैं इस तरह अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा कर सकते हैं पेज पर। मैं फिर नॉर्मल पेज पे ले आता हूँ। उसके बाद गाइस हम आपको बताता हूँ कि ये टोटल 1 से लेके 1A से लेके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हैं, और इस तरह डाउन अप करते हैं। और इसी तरह रोज़ की सूरत में भी XFD तक ये रोज़ जा रही हैं, इट मीन ये इससे भी ज़्यादा सेल्स हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें नेविगेटिंग में आ जाती हैं। तो इसके बाद जनाब रिबन्स एंड टैब्स ये डिस्कस करेंगे। गाइस ये रिबन्स, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाइस इसके बाद हम रिबन्स और टैब्स। रिबन्स मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि रिबन्स जो सबसे पहले आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये देखें ये सब रिबन्स है, ठीक है, और ये सभी हैं टैब्स, ठीक है। जैसे कि मैं पहले इसको टच देख के जा चुका हूँ रिबन्स को, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें शो, अगर ये फ्रंट पे शो रहा है, इस पर राइट क्लिक करके हम सारे रिबन्स शो होते हैं जो जब चाहते हैं, डू, अंडू, रीडू, ये देखें अंडू, ये सभी आप इसमें रिबन्स में ऐड कर सकते हैं मैनुअली और वंस टाइम, ठीक है। और स्पेलिंग है, ठीक है। इसके बाद ओपन का है, फोल्डर्स ओपन का, न्यू फाइल का है, ये क्विक प्रिंट का है ऑप्शंस, और टच माउस मोड है, ये देखें ये टच माउस मोड हो चुका है। और इसके बाद हम इसको करते हटा देते हैं इस मोड को। फिर उसके बाद सर आप देखेंगे मोड कमांड्स, ये सभी रिबन्स है, आप इस तरह ऑल कमांड्स करके तमाम अपने पास 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। अब इसको सारे रिबन्स को मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे जो चाहिए मैंने सिर्फ उसको ही अपने पास रखना है। और ये देखें ये सारे रिबन्स इस तरह आप अपनी फाइल्स में ऐड और रिमूव कर सकते हैं एज पर योर नीड। मैंने आपको 1 बाय 1 करके भी दिखा दिया है और मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद ये सभी टैब्स हैं, जैसे कि ये सबसे पहले होम टैब है, जैसे कि मैंने ये एक्सेल की फाइल को ही करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने 2 फाइल ओपन की हुई हैं, जैसे कि ये मैं कुछ लिख रहा हूँ और ये देखिए ये एक सेल्स में आपको ओपन कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फंक्शंस बार्स में ये टैब्स, फर्स्ट टैब होम का टैब है जो उससे लेके ये इस पार्ट में आप वर्किंग कर सकते हैं। अब वो होम टैब में जो फर्स्ट है एडिशन वो क्या है कि ये एक कॉलम है, इसको हमने फिल करना है तो कलर यहाँ फिल कर देंगे, जो जैसे कि मैं पहले इंट्रो में बता चुका हूँ
कलर्स ये देखिए, ये है फॉन्ट, ये है बॉडी, ठीक है। इसको आप बॉर्डर लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कह सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सभी यूजेज हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंग्वेज चाहिए तो आप वो यहाँ लेके कर सकते हैं। इसके बाद साइज़ और रीसाइज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ग्रिड है या जो चीज़ें भी ये सारी, इधर इंसर्ट है, डिलीट है, एडिटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये सभी इन्हीं टैब्स में है। अच्छा, अब सेकंड टैब जो है इंसर्ट के रिलेटेड, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सारी चीज़ें इसी टैब में आएंगी, ठीक है। ड्राफ्ट के रिलेटेड, लेआउट के रिलेटेड, फार्मूला, डाटा, मैं इंट्रोडक्शन में सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्टिव सेल नंबर 4 है एक्टिव सेल। तो गाइस, मैं जैसे कि नाम ही इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि ये देखें, ये अभी हम D2 में हमारा जो वैल्यू इंसर्ट कर रही है, तो ये इसकी, ये देखिए हेडिंग में इसकी सेल्स का एड्रेस कर सकता है। जैसे कि मैं C2 करूँगा और मैं C2 पे आ जाऊँगा, और इसी तरह मैं अगर मैं F7 करूँगा सेल का एड्रेस, तो मैं सेल में मेरा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन जिस सेल्स में आप काम कर रहे हैं वो आपका एक्टिव सेल है। और जैसे कि आप सिलेक्ट करते हैं ये 4 सेल, तो ये जो मैंने सिलेक्शन की है A9 से लेके F9 तक, तो ये मुझे उसकी एड्रेस जो एक ही बार सिलेक्शन है, एक पहले एड्रेस का सेल दे रहा है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये पहले सेल पे आ जाएगा। जैसे जिस सेल पे मैं जाऊँगा वो मुझे सेल का एड्रेस तो चले जाता है। बाद तक आपको फार्मूला में पता नहीं चलता कि फार्मूला किस सेल के साथ लिंक है, तो आप इसको अनसेलेक्ट करके यहाँ आके जब वो सेल देंगे, जैसे कि है I12, तो I123 हो गया 12, तो आप उस सेल पे पहुँच जाएंगे इस एक्टिव सेल के थ्रू। गाइस, ये बहुत यूज़फुल है अगर आप इसको समझे तो। गाइस, इसके बाद मेरे पास नंबर 5 पे है क्विक एक्सेस और टूल बार। क्विक एक्सेस का और टूल बार, इससे ही, इसका नाम से ही ये विजिबल है। गाइस, क्विक एक्सेस और टूल बार जो है वो मैं गाहे बगाहे उसका ये देखेंगे। जैसे कि ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस एंड टूल बार है, ये सारे सिलेक्शन जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके अभी दिखाए हैं, तो ये सब ही क्विक एक्सेस और टूल बार है। अब जैसे जाएंगे आप मोर डिमांड्स में, तो ये देखें, ये मैं जा चुका हूँ क्विक एक्सेस और टूल बार में। ये डाटा है, फार्मूला है, जर्नल है, प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस है, रिबन है, क्विक एक्सेस और टूल बार। ये देखें गाइस, हम अपने टूल बार में ये सभी कमांड्स को ऐड करेंगे। ये मैंने सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी शीट में शो किया हुआ है। ये देखें, ये क्विक एक्सेस ऑफ टूल बार, ये यहाँ शो हो चुका है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको शो द रिबन ऑफ फाइल और शो द रिबन ऑफ डाउन, आप प्लेसमेंट से इसको कर सकते हैं। इसका भी मैं इंट्रो पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। अब गाइस, इसके बाद जो हमारे पास है नंबर 6 पे ऑल शॉर्ट कीज। अब हम हर शॉर्ट एक सिंगल क्लिक से हम, जो कि आल्ट फंक्शन से ऑपरेशन करती है, तो उससे आप तकरीबन अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टैब्स की जितनी भी कीज है सबको एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको नॉर्मली अनसेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ टैब्स को, तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन के साथ एक शॉर्ट की
का हाईलाइट हो चुका है और वो बता रही है कि वो एक सिंगल बटन से वो की ऑपरेशन करेगी और वो उस लिंक पे आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको एक करके एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ H और H टैब में H मीन टू से दैट होम टैब में जितने भी फंक्शंस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं वो इन शॉर्ट कीज की मदद से ऑपरेशंस कर सकते हैं विदाउट माउस। जैसे कि मैं आपको ये सिलेक्शन पिक्सल है जिसका नाम है D2, मैं आप इसको फिल करके दिखाता हूँ शॉर्ट की से। तो मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए H के साथ आ रही है, H प्रेस किया और इधर आप मैनुअली इसको विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की से आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं अगेन R प्रेस करता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ N और N कर प्रेस करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ T टेबल। ये देखिए मेरा टेबल ये सिलेक्ट हो चुका है जो कि मुझे नहीं चाहिए। ये इंसर्ट में फिर मैं R प्रेस करता हूँ और मैं जाता हूँ P पे। तो P पे जितने भी अपने टूल्स हैं सब की ऑप्शंस आ चुकी है। तो जैसे मैं TF प्रेस करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस खुल चुके हैं। जो मुझे जिस तरह चाहिए मैं उनको उस तरह यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं एक्सेल्स की तमाम शॉर्ट कीज़ जो कि ऑपरेशन कर रही हैं फाउंड के रिलेटेड वो सारी इधर आ चुकी है। तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर देते कस्टमाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कीज। तो जो नंबर लास्ट पे है वो हम अपना नंबर 7 अपना टूल बार अपना टैब जो कि ये रहा, ये आ रहा होम इंसर्ट, ये हम खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने जितना भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी तक यूज़ किया है अपने 12 साल की प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैंने ये नहीं करते हुए लोगों को देखा। वो जस्ट रूटीन से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे विजुअल नॉर्मल विजुअल से वो यूज़ करते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे कि सब करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने खुद भी न्यू ही लर्न किया है। इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जाएंगे क्विक एक्सेस बार पे, शो मोर कमांड्स पे, ठीक है। यहाँ आप करें एडिंग, ये देखिए ऐड हो चुका है। अब आप इसको अपनी मर्जी से ऐड इन कर सकते हैं। कस्टमाइज के नाम से रीसेट है। तो ये देखिए गाइस हम यहाँ से कि हम इधर क्लिक करेंगे कस्टमाइज पे रिबन पे आ जाएंगे और ये टैब हम अपनी मर्ज़ी से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज द रिबन पे आके आप इसको करेंगे न्यू टैब, तो ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसको आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ अपना कोई भी ये लोगो लगा सकते हैं इस टैब पे। और जी हम डिस्कस कर रहे थे कस्टमाइजिंग रिबन एंड क्विक एक्सेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इधर राइट क्लिक करेंगे कस्टमाइजिंग एक्सेस फोर कमांड पे जाके हम इस तरह भी इसको ले आ सकते हैं। और कस्टमाइजिंग से जाके यहाँ कस्टमाइजिंग रिबन पे जाएंगे और गाइस आप देख सकते हैं ये सभी कस्टमाइज हुए हमारे टैब्स हैं। और हम टैब्स को ऐड करने के लिए हम करेंगे न्यू टैब पे क्लिक। ये जैसे आप देख रहे हैं हमारा न्यू टैब जनरेट हो चुका है। यहाँ पे जाके हम ऑल कैटेगरी, इसको पहले हम अपने टैब को कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं। फरहान मैंने इसका नाम रख दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका नाम जनरेट हो गया।
अब ये जाएंगे न्यू टैब में, इसमें आप जा के ग्रुप में अपनी मर्ज़ी से हेडिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैंने 3D ऐड कर दिया। जो भी आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इजीली ऐड हो सकती हैं रिटेंशंस वो मैंने आपको ऐड करके दिखा दी है। अब इस पूरे टैब में मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि मैंने अपने टैब को न्यू कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस के थ्रू मैंने इसको कर दिया है। अब ये देखें ये मेरे नाम से ये टैब ओपन हो चुका है फरहान, और ये सारी इसमें जो मैंने अभी सिलेक्शन की है, आप जिस तरह भी चाहते हैं इसमें अपनी मोर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो दोबारा से जाएंगे कमांड, ठीक है, कस्टमाइजिंग रिबन पे जाके आप फरहान पे क्लिक करें और इसमें अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आप और कोई चाहते हैं ऐड करना तो आप इस पर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।